of experience in finance, as a specialization in treasury and fund operation. And she has taught in estimated institutions like ISMSS and Pune and MIT WB. We are grateful for her presence and excited to share her knowledge on a corporate law and financial management. Thank you, Anushree ma'am, for being here. And now it's over to you, ma'am. You can continue to and incite our students, ma'am. Thank you so much, Gurpreet sir. And again, thank you so much, Vinay Bajaj sir, for giving me this opportunity to have interaction with the students who intending to have their career into finance world, into banking, in BFSI, especially BFSI sector. And it's been going to be a fabulous career for you. I'll simply say that for next upcoming 30 years, when India is going to lead the world, that BFSI sector is somewhere you will anticipate a lot much of opportunities with fintech, digital systems, and digital transformation overall we had since last 10 years. The same journey we are going to keep it ahead with the much progressive state. And that's why I feel that this BFSI sector is going to be on a very faster pace. And so thus you are on the right track to have this kind of your career. So if I can just begin with my presentation. So what my agenda is, so Gurpreet sir, how much time will I get now for my discussion plus the Q&A? Consider that 1 hour from now. Ma'am, you can, yeah, ma'am, you can take more than 1 hour. Not an issue for us. Okay, so I'll try It's to all the make time it yours, as ma'am. crisp as possible to have more interaction rather than having just a one-way communication. So, guys, just be interactive enough in a class right now in an online session. So, whenever I ask you any kind of questions, you can simply unmute yourself and talk, or you can drop down your answer in the chat box. Will that be okay for everyone? Yes, Need a ma'am. yes, nod? Yes, sir. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Perfect, perfect. I hope I am not like okay. Am I having a right to share? Yes. Okay. Do acknowledge if my screen is visible to you. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Perfect, perfect, perfect. So here is our first discussion. What exactly we are going to talk about today? So it's Nifty, Bank Nifty. It's crash that happened on this Monday this week, and the after effects of so. So we are going to analyze first of all what was the reason for this crash and what were the consequences of that. So it's going to be a cause and consequence. This discussion we are going to do it for another 30-40 minutes. So before to onboard on this particular discussion about Bank Nifty and crash and the after effects, etc., I want your understanding. I want to know your understanding about Nifty. What do you exactly mean by Nifty? Heard about this word before? Nifty? Anyone? 50 companies का Come again, please. 50 companies का उसमें टॉप 50 कंपनी में जो मनी लगाती Top 50 companies of what? In India? यस मैम 50 जो कंपनियां इंडिया की जो बेस्ट 50 सिलेक्टेड कंपनियां सिलेक्टेड होती है And why this word Nifty? because वो 50 company का ग्रुप करेगा. Okay, so it's just simple. I'm here talking about Nifty. That means for about which exchange I'm talking about here? When I call it as Nifty, which stock NSE. exchange am I referring it? NSE. NSE. Perfect. And what if I want to talk about BSE, Bombay Stock Exchange? Which word should I utilize? Sensex. BS. Perfect. Perfect. Absolutely right. Sensex. So whenever we talk about Sensex, we should we should connect that with the Bombay Stock Exchange. Sensex, the meaning of it is sensitive index. So a coined word of sensitive index is Sensex. Whereas when we talk about Nifty, we call it as NSE and 50 companies. So NSE and 50 combined as a Nifty. Got it? And here in Nifty, we have got few of the stocks. Now 50 stocks. So top 50 stocks. So is it
mandatory that the stocks which were there some 10 years before amongst top 50 should be there all the time in for top 50 till today? Is there a No, ma'am. mandatory thing? No. So every time this 50 number keeps on changing depending upon the market capitalization, depending upon its volume, and the more and more capitalization it is going to be have, there accordingly top 50 companies will be decided. Who is ranking number one in terms of top 50? If you know, by volume, by more capitalization, which company ranks HDFC number one? Bank, I guess. No, Reliance Limited. not HDFC. हिंदुस्तान यूनिलीवर, No, Reliance, absolutely right. Reliance Industries Limited. Reliance is called as the darling of stock market. Whenever there is going to be any movement in Reliance Industries, the stock market used to, is always is going in line with the Reliance news. Eventually, in this presentation, I'm going to go ahead with showing you certain website, other external links and websites from where you can also search the daily volumes, daily data. So I'm going to have that kind of discussion with you. Right now, I'm going to go ahead with the presentation first. Then in between, wherever the accordingly topic comes, so relevance to that, I'm going to show you certain websites like the NSE, TradingView, Opstra. This kind of websites I'm going to have a reference simply to make a more understanding about the topic. Shall we on board now with this presentation? मैम क्या आप कंबाइंड लैंग्वेज पे बात कर सकती हैं, समझा सकती हैं? इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में समझाना है मुझे? यस मैम। yes, Perfect. ma'am. So far as possible, मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगी. इंग्लिश करना है ना इन शॉर्ट मुझे. थोड़ा थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश. Is it? Okay, fine. No issues. So Nifty, what is Nifty? Nifty होता क्या है? So it's NSE and 50. Just I explain the concept. So which Nifty is a stock market index. So how many indices are there? There are many indices. Indices का क्या मतलब होता है? एक index ज्यादा होते हैं तो indices. So in this particular case, we have got one particular index that is called as Nifty 50. जिसमें इंडिया के top 50 companies जो है उसका सारा वैल्यूएशन वगैरह सबकी कैलकुलेशंस NSE 50 पे होती है. So this top company represent India not only for India but also at the global level. These companies are representing India's economy. Now उसके बाद और इंडेक्स कौन कौन से होते हैं? तो एक मेटल का है ना, एक थोड़ा बैंक का इंडेक्स आएगा, एक IT का इंडेक्स, देन एक होता है ऑटोमोबाइल का इंडेक्स, एक और हो जाएगा आपका टेलीकम्युनिकेशन का इंडेक्स. सो हर एक कंपनी सेक्टर वाइज कंपनी जो होती है उसका मिलाकर एक इंडेक्स बन जाता है. सो दिस इंडाइसेस आर देयर फॉर द सेक्टरल बेसिस एज वेल. नाउ these top companies which are listed on stock exchange, that is National Stock Exchange, will be called as Nifty, and it is considered as a benchmark index for Indian stock market. Market का क्या हाल है कोई अगर पूछेगा तो what exactly we are going to refer as to Nifty and Sensex. These are the main indices, okay? Nifty and Sensex, similar to S&P 500 in the US. So USA का S&P, that is Standard and Poor. What is Standard and Poor? It's the credit rating agency which is working worldwide and giving ratings for the companies, and they are also into the investments. So they hold these investment in the Nifty, they hold investment in the Sensex also. So our Sensex is called as S&P Sensex. So Standard and Poor has got its investment in the BSE as well, Bombay Stock Exchange. Exactly Nifty, Bank Nifty क्या होता है? So as I mentioned, सेक्टरल के इंडेक्स होता है. वैसे एक बैंक का रिप्रेजेंटेशन होने के लिए कुछ सेक्टर चाहिए, so कुछ इंडेक्स चाहिए. So बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक, whatever the name you want, बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक आप बोल सकते हो, उसको बनाया गया है. Now which are those companies listed on Nifty Bank? तो exactly होती कौन सी है? Is it mandatory कि सारे बैंक्स, जितनी भी बैंक वर्किंग इन इंडिया है, सब कुछ सारे लिस्टेड होनी चाहिए? Is it mandatory? Is it compulsory कि जितने भी बैंक्स इंडिया में फंक्शनिंग है सबको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना ही है? No, ma'am.
Then which banks that you know are listed on on stock exchange? आपको ऐसी कौन सी बैंक पता है जो लिस्टेड है? HDFC मैम, SBI, HDFC, ICICI, Axis, IDFC है, yes कोटक बैंक, महिंद्रा, IDFC Correct. फर्स्ट बैंक, yes बैंक। करेक्ट करेक्ट। नाउ अभी ये बताइए ऐसी कोई बैंक जो आपको पता है बैंक है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। बुलढाणा कोऑपरेटिव बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण Central बैंक, Bank of India. Right, that is something we call it as the cooperative sector, those companies which are not listed on the exchange. हेलो मैम, Just 1 minute. वॉइस कम हो गया। I have this 100% volume from my side. Can't increase further. Okay, so here ऐसी सारी बहुत सारी बैंक्स है जो लिस्टेड भी नहीं है। कुछ 12 बैंक है इंडिया में जो लिस्टेड है ऑन बैंक निफ्टी। मैम वॉल्यूम, वॉइस नहीं आ रही वॉइस। इज इट सबको ये प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ कुछ एक दो लोगों को? it's proper. No, it's proper, no? Audible. Okay, so check आ from रही your है। end whosoever are getting the problem in like listening to me. Check your connection, please. So, okay, I'll proceed. So Bank Nifty, basically, not all banks are listed on exchange. Is it not? It is not compulsory that all banks should get listed on stock exchange. Absolutely not. बैंक निफ्टी पे जो होती है उनमें से भी कुछ ही बैंक जो है वो टॉप 50 में आती है। जैसे कि HDFC बैंक इज वन एग्जांपल, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये 2-4 एग्जांपल्स ये जो टॉप 50 भी निफ्टी में आते हैं। बैंकिंग के इंडाइसेस में भी है एंड निफ्टी में भी है। Eventually you'll come to know. So how do we decide this? So this Bank Nifty index, which is using free float market capitalization method for calculation. So free float market capitalization matlab kya? What do you mean by market capitalization? We also call it as MCAP. MCAP का मतलब क्या होता है? Anyone knows MCAP? Just a guesswork. Total capital of the company. Total capital. So do I mean to say कि मैंने इशू अगर कर दिए 100 शेयर्स मैंने इशू कर दिए at ₹10 each, तो 1000 मेरा मार्केट तो 1000 मेरा कैपिटल है, करेक्ट? मैम वो फिर उसके बाद फीडिंग भी होंगे ना उस वैल्यू के 10 के ऊपर तो जाएगा, फिर उससे कैलकुलेट नहीं होगा। करेक्ट। सो इवेंचुअली कंपनीज इशू कर लेती है, उसके बाद कंपनी के शेयर्स ट्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो वंस दिस गेट स्टार्टेड ऑन द इंडाइसेस एंड जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कंपनी अगर प्रॉफिट्स में है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अच्छे खासे उनकी बिजनेस चल रही है, तो कंपनी की शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ती है? क्योंकि उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती है। So as the demand increases, its price is also going to increase. So price बढ़ जाती है, सप्लाई तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि एक बार जितने शेयर्स इशू कर दिए अकॉर्डिंगली उतने ही शेयर्स कंपनी में ट्रेड होते रहेंगे, सर्कुलेट होते रहेंगे। कोई तो मार्केट में बायर आएगा, कोई तो सेलर आएगा। सेलर और बायर, जब सेलर ही नहीं होगा तो बायर क्या ही बाय करेगा। सिमिलरली अगर बायर ही नहीं रहेगा मार्केट में तो सेलर क्या बेचेगा। सो शेयर्स जितने हैं 100 शेयर्स 500 शेयर्स जितने शेयर्स दिए हैं वही शेयर्स सारे जो है वो ट्रेड होते रहेंगे। तो सप्लाई इज गेटिंग कांस्टेंट। तो सप्लाई अगर कांस्टेंट है और कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे खासे आ रहे हैं तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है। सो बायर क्या बोलता है कि मुझे ज्यादा प्राइस पे भी मिल जाते शेयर्स तो भी मैं परचेस कर लूंगा क्योंकि कंपनी हैज गॉट दिस गुड रिजल्ट्स। तो इस वजह से बैंकिंग के शेयर्स की जो कीमत होती है वो बढ़ती जाती है। So the price tends to increase when these particular shares are in demand. So accordingly the company की price डिजाइन हो जाती है। अगर कोई कंपनी में बहुत ही बड़ा गफला हुआ, स्कैम हुआ है या उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा निगेटिव आए
या फिर आरबीआई ने कुछ तो उनको पेनल्टी लगा दी, कुछ तो उनको नॉन कंप्लायंस के लिए नोटिसेस भेज दी, उनका बिजनेस स्टॉप कर दिया, लाइसेंस कॉन्फिस्केट कर दिया, ऐसे कुछ अगर निगेटिव चीजें आती है तो उनके शेयर्स की प्राइसेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है. आर यू गेटिंग मी? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Perfect, perfect. So, recent examples दे देती हूँ. JM Financials NBFC कंपनी है, आरबीआई ने उनका लाइसेंस ऑन होल्ड रखा था. उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक जो है उनको भी फॉर अ वाइल उनको भी नॉन कंप्लायंसेस के लिए नोटिसेस इशू कर दिए थे, पेनल्टी बड़ी बड़ी पेनल्टी लगाई थी. थर्ड एग्जांपल इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उनका भी लाइसेंस कॉन्फिस्केट कर दिया था, उनको बोल दिया था कि अभी आप आगे से जो आपकी पेमेंट गेटवेज है उस पर आप काम नहीं करोगे बिकॉज यू आर गोइंग इनटू नॉन कंप्लायंसेस. तो ये 3 बैंक्स है, दीज आर स्पेशली एग्जांपल्स इनटू बैंकिंग सेक्टर. ऑल्दो आई एम नॉट रिफरिंग इट डायरेक्टली टू द बैंक निफ्टी, बट 2 एग्जांपल्स है जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड जेएम फाइनेंशियल्स जो एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंस सेक्टर में आते हैं, नॉट इन बैंकिंग. whereas कोटक महिंद्रा बैंक का डायरेक्टली इशू हुआ था which is a part of Nifty Bank. Now these are the banks which are listed on Bank Nifty. बैंक निफ्टी पे क्या क्या है? निफ्टी बैंक पे तो ये सारी 12 बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस. अब इनको मैं डार्क कलर कर दिया है बिकॉज these are having these 3 are having major chunk and these are also available into top 50. बाकी कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड, आईडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक एंड फेडरल बैंक. ना आउट ऑफ विच आप मुझे जरा क्लियर कट जल्दी से बता दीजिए उसमें से प्राइवेट कंपनी कौन सी है एंड नेशनलाइज बैंक कौन सी है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बताइए जरा वन बाय वन. ओके, एचडीएफसी, प्राइवेट, पब्लिक, नेशनलाइज, इस तरह से आपको बताना है. Private. नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, Private. Private. इंडसइंड, Private. आईडीएफसी फर्स्ट, Private. आईसीआईसीआई, Private. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, Public sector bank. Sector bank. public sector bank. is it nationalized bank? Yes. No. State Bank of India is not a nationalized bank. It is public sector bank. Public sector. Next, Punjab National Bank, Public sector. Central bank है Public sir. sector. PSU and nationalized. Bandhan Bank, Private. Private. Axis Bank, Private. Bank of Baroda. Public sector. It's a PSU, yeah, public sector nationalized. AU Government Bank, bank. Private. private, and Federal Bank. Private. Federal Bank is internationalized. Next, what is the importance of Bank Nifty? So market indicator. Bank Nifty is a leading indicator. Okay, now I request all of you to please be on mute. So whenever you'll get a chance to speak, kindly unmute yourself that time. Anyway, we will be having some last 10 minutes of time for the Q&A. Importance of Bank Nifty. So it's market indicator. Bank Nifty is a leading indicator of the overall market sentiments. A strong Bank Nifty often correlates with the bullish market and vice versa. Now, why am I so much emphasis on bank and bank? Obviously, for 2 reasons. We are here because of the banking and BFSI sector. We are together here as I am as a trainer, you as a learner. We are going to be on this BFSI sector. So I need to revolve around this topic first. That's the main important reason. Second reason is bank is considered as a backbone of the economy. So whenever there is going to be any happy thing for the bank, entire economy is going to get benefited. Because banking is the main sector which connects the households and the industries. So household incomes, household savings are getting converted into the loans for the business purposes because of the intermediary. Bank works as an intermediary. Because of the interference of the banking sector, these household income, so normal common retail investors are able to generate money for the businesses.
because bank are playing the major role of intermediary over there. And that's why Bank Nifty becomes very important when banks are performing well. This is going to indicate a very good, growth prospect for any economy. Similarly, now investment opportunities are there, which provide opportunities for investor to invest in the banking sector through index funds or ETFs. ETF, what is the full form of ETF? Anyone knows? Exchange trade fund. Exchange traded fund. Perfect. Now, can you elaborate the term? Sorry. Yeah, my bad. Okay, can you elaborate the term exchange traded funds? ETF. Eventually, when we take this, not take these sessions further, we can explain on ETF. So ETF is exchange traded funds. So all those indexes where we can make investment, and all those banking sectors, especially all the different we can say securities of particular bank can be traded at one go. That's through the exchange traded funds. Now derivatives coming into futures and options. So that's a derivative trading. An economic indicator, the performance of the bank Nifty can be used as a proxy for the overall economic health of the country. As I explained, banking is a sector which is going to make a lending activity to different other sectors. And that's the reason banks are connected everywhere. Banks are into their investment advisory services. Banks are there to give lendings to the companies. Banks are there to give all kind of consultancies, and banks are there to take care of their certain assets too. So bank are into different other allied businesses apart from the main function. What are two main functions of the bank? Two main functions. Deposit and lending the money. Perfect. Acceptance of deposit and lending of money. Now, apart from that, what are the ancillary or incidental activities of the bank? Apart from this particular basic activity, basic commercial functions, what are other functions of the bank? And mutual funds, credit cards, Perfect. remittance Like services, credit card. Insurance, Credit card. Insurance, credit card. loan facility, Credit expansion. I'm Right. issuing underwriting securities. Okay. Factoring, discounting. Have you heard about these concepts? No, ma'am. No. Okay. Eventually, whenever there will be a session for the banking activities, I can explain you that time, not this, now, not today. Okay. Several factors which influence the movement of Bank Nifty. That is an economic indicator, GDP growth, interest rates, inflation, fiscal policies. These are all going to be the economic indicators which influence the banking sector. Who is the boss of banking sector? RBI. 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 Okay, RBI. just sorry. There was it's an important call. So several factors which influence the movement of Bank Nifty, it's GDP, interest rate, inflation. GDP is gross domestic product. Interest rates, so RBI is going to decide the interest rates. So it's going to be whether that's a CRR, cash reserve ratio, SLR, or other any repo rates, reverse repo rates, or any the specific interest rates on savings deposits, fixed deposits, etc. RBI is going to decide the exact rate or range of particular interest rates. So logically, economic indicators are highly getting impacted
by the bank nifty or bank nifty get affected by the economic indicators. Global factors, whatever the global scenario is, accordingly the bank nifty is getting affected. It is much towards now momentum sentiments. So whatever is happening in the global scenario, everything will be having impact over nifty, over the stock exchange indices. So bank nifty cannot be an exclusion. It will be also getting affected because of the global changes. Regulatory changes, so banking regulations reforms can significantly impact. I mean, Federal Reserve, so Federal Reserve Bank of United States of America will be deciding certain interest rates and repo rates, will be having direct impact on India's banks, India's stock exchange. How is it? I mean, possibly when we know USA is so far from India, and how it can affect directly to India. Can you just relate that? Anything decided in USA will be having impact over India. How? Ma'am, because of trade finance. Explain, please. Elaborate further. Will you be elaborate? Will you be able to elaborate? Because मैम काफी सारे कंट्री के पैसे यूएस में लगे और एक्सचेंज में अपन हमेशा डॉलर से एक्सचेंज करते हैं हर चीज. Right. So trading chalta rehta hai. So it's for exchange, export and imports are always happening. And if there are going to be any changes there, our larger businesses, be that is our exports, our IT industries are completely, no, we can say mostly, not completely, but to a greater extent are dependent on USA. Because USA is going to give us bread and butter for the IT industries, for the exporters in India, etc. So for that purpose, whenever there is going to be any change in US policies, India is getting impacted out of it. Then the market sentiments. Now I'll come to this market sentiments when I will be discussing a crash. Earning performance. So financial performance of constituent banks affect the index. Whatever are the results, quarterly results declared. So what is the quarter, if you mean to say quarterly results? If I want to know about quarterly results, what are those? 4 महीने में. Sorry? फोर्थ मंथ रिजल्ट शो करती है कंपनी. क्वार्टर का मतलब 4 थोड़ी होता है. 3 months. 3 months. हाँ, फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है? फर्स्ट क्वार्टर के मंथ्स कौन कौन से? January, February, March. रॉन्ग. April, May, June. April, May, June. तो that's a new addition आपको मैं बता रही हूँ अभी कि एक फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, जिसके रिजल्ट्स क्या है कंपनी को, हर एक कंपनी जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने होते हैं. जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होता है ना, तभी मार्केट में बहुत सारे ऊपर नीचे चेंजेस, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं. स्पेशली बैंकिंग सेक्टर जब होता है, रिजल्ट जब भी आ जाते हैं तब भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है. नाउ 3 महीने अप्रैल मई जून का जो भी परफॉर्मेंस रहेगा बैंक का, बैंक और कोई भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी कोई भी होगी, for all the 3 months of performance, they are supposed to disclose it to the stock exchange, to the world at large through the newspapers, making certain disclosures on stock exchange. ये सारी disclosures देने पड़ते हैं on or before 21st of July. मतलब 3 महीने खत्म हो जाते हैं. अप्रैल मई जून खत्म हुआ, जुलाई के 21 तारीख के पहले उनको डिस्क्लोज करना होता है. व्हाट इज द सेकंड क्वार्टर? सेकंड क्वार्टर कौन सा होता है? July, August, September. जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने का क्वार्टर हो जाता है. सितंबर खत्म होता है तो उसके बाद 21 अक्टूबर तक उनको डिस्क्लोजर देने होते हैं उस क्वार्टर के एंड हाफ ईयरली बैलेंस शीट. हाफ ईयर बन जाता है ना, अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो हाफ ईयरली इंपैक्ट कितना हुआ, हाफ ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड हाफ ईयरली रिजल्ट्स उनको डिस्क्लोज करने होते हैं बिफोर 21 अक्टूबर. अभी आओगे आप थर्ड क्वार्टर में. थर्ड क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर. परफेक्ट. सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाता है. दिसंबर खत्म होते ही 21 जनवरी के पहले उनको डिस्क्लोज करना होता है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट. दैट्स व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर. फिर आ जाता है आपका फोर्थ क्वार्टर. फोर्थ क्वार्टर कब आएगा?
जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च। जैन टू मार्च का रिजल्ट आपको डिक्लेयर करना होता है ऑन और बिफोर 21 अप्रैल, नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख के पहले। अब ये 21 का क्या मतलब है, क्यों? So logically 15 days are given enough for the companies to prepare their quarterly results, जितने में results check कर लो, and one week of passage time is given for the companies to disclose, to publish and get the results disclosed on stock exchange, get the results declared in the newspaper etc. अभी एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो वो फाइनल हो जाता है, उसमें आप बाद में जाके कुछ रेट्रोस्पेक्टिवली जाके कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे चेंज आप करोगे, ट्रेडिंग का मतलब क्या करना है? सो यू हैव टू कंसीडर द बैंक निफ्टी फॉर द डेरिवेटिव्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, एंड इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ। तो इन्वेस्टर्स कैन गेन एक्सपोजर टू बैंक निफ्टी थ्रू द इंडेक्स फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स करके एक अलग से होता है एक सेगमेंट जिसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, and even intraday delivery trading तो होता ही है। What do you mean by intraday trading? Now since we are on the trading strategy, I need to understand कि आपको कितना पता है intraday। मैम डे टू डे ट्रेडिंग होती है उसमें। डे टू डे ट्रेडिंग कब स्टार्ट करते हैं, कब एंड करते हैं? 9:15 to 3:30। 9:15 to 3 बजे बंद करते। 3:30। To be very precise 3:20 को आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है। यस मैम। yes मैम 20 मिनट तक Yes, स्क्वायर ma'am. ऑफ करना होता है। ये स्क्वायर ऑफ करते हैं मतलब क्या करते हैं आप? पोजीशन पोजीशन स्क्वायर ऑफ। पोजीशन काटना कैसे करते हैं स्क्वायर ऑफ? मैम बाय Short करते position तो सेल कर देते हैं और सेल करते तो बाय कर देते हैं। परफेक्ट, ठीक है। चलो 9:15 हो गया अभी। सपोज आज मुझे ट्रेडिंग करनी है, 9:15 को मुझे स्टार्ट करनी है। आज देखा तो एक्सिस बैंक ड्रॉप थे, ठीक है, शेयर्स बहुत नीचे गए एक्सिस बैंक के। व्हाट शुड आई डू, बाय करूं या सेल करूं? सेल। मैम इट्स ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस एंड वॉल्यूम। हाँ करेक्ट, वी कैन नॉट सोली डिसाइड कि ये सोली हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अरे आज मार्केट प्राइस कम है तो चलो कम हुआ तो सेल कर लेंगे। this no immediate on one particular signal, one particular indicator, we cannot decide our investing strategies. We need to have a lot many of the patterns to be considered before we make any investment. So we need to be very very clear with the knowledge and then only enter in the trade. Otherwise you are going to enter in the huge losses and now for subsequently thoda sa a big hole to a pocket and leading to that frustration कि कुछ नहीं हो पा रहा, ये पैसे तो भागते जा रहे हैं मुझसे, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। सो टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट बिफोर यू नीड टू हैव अ लॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। हर्ड अबाउट दिस टू वर्ड्स, टेक्निकल एंड फंडामेंटल? फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, जिसको पता है वो बोल। फंडामेंटल जो लॉन्ग टर्म में लगाना है तो फंडामेंटल चेक करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस पता चलती है उससे। ओवरऑल कंपनी का डाटा मैडम। तो कैन आई कंसिडर दैट कि पिछले कई टेक्निकल बेस सालों पे अभी से की परफॉर्म कंपनी कैसे market परफॉर्म कर रही है, ये लॉन्ग टर्म का जो कंपनी का डेटा है वो चेक करके मुझे फंडामेंटली में क्लियर हो जाती हूँ। फंडामेंटली आई गेट स्ट्रॉन्ग, करेक्ट? यस मैम। कंपनी के पिछले कई सालों से फाइनेंशियल रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं ये चेक करके मुझे फंडामेंटल नॉलेज मिलती है, राइट? मैम और मार्केट ma'am. कैपिटल। मार्केट कैपिटलाइजेशन ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? इट्स बेस्ड ऑन चार्ट टेक्निकल पैटर्न्स ओके, एंड अदर इंडिकेटर्स टू। लॉन्ग टर्म के लिए क्या यूज करते हो आप और शॉर्ट टर्म के लिए क्या यूज करोगे? लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल चेक करते हैं और प्रेजेंट में देखते हैं तो के लिए टेक्निकल टेक्निकल। ओके, एंड इफ आई वांट टू गो फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे करना है तो
मैम टेक्निकल. It's more towards technical. Perfect. Start with it. So टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना जरूरी होता है टू एंटर इन द शॉर्ट टर्म ट्रेड्स. लॉन्ग टर्म ट्रेड और अब सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम कर रहे हो तो फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस करना होता है. मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया और भूल ही गए सालों भर के लिए, कितने सालों के लिए आपने देखा ही नहीं उसके पास, तो वो फंडामेंटली कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है तो फिर आपके शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है. But technical analysis is more important when you are going to trade on the exchanges on a daily basis or for a very short duration. 4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो in that case more you are going to incline towards technical analysis where Yes, ma'am. support and resistance level, then trend lines, moving averages, MACD बोलते हैं उसको, moving averages, convergence and divergence, and candlestick patterns, they are going to be useful. Okay, before we go ahead on crash, I would like to take you to certain external sites, external links. चलो मेरी स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ मैं. स्क्रीन विजिबल है मेरी? Because I'm showing you lot many of the Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, Okay. ma'am. Slide नहीं दिख रही मैम. अरे रुको भाई, स्लाइड दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो दिखा मैं शो ही नहीं कर रही हूँ स्लाइड. Now right now I am on different website. You can also check it any time. मतलब ये जाके ऑब्स्ट्रा करके एक साइट है, उसको आपको लॉग इन करना होगा. ये साइट दिखाई दे रही है आपको? Yes. obstra.defineage.com. Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. ऑब्स्ट्रा के होम पेज पे आप रहोगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा. देन ऑब्स्ट्रा के साइट पे obstra.defineage.com में आपको ना लिंक दे रही हूँ. Whenever you would like to go through the same, you can. Gurpreet sir, are you there in the meeting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm here. Yeah, if you can just make me co-host, I can share with everyone. Because right now I wanted to share some Yeah, information in the sure, chat sure, box. sure. Just a minute. I'm done from my end. You're now Yeah. co-host. Okay. Thank you so much. So that I can share with everyone. Direct message to everyone in the meeting. Yes. Thank you. Okay, so this is the website, obstra.defineage. You need to log in before, or you can simply go with the Google login directly. Here in the futures option, you have got some fifth option, heat map, which gives you information about heat map. This is Nifty 50, okay? Reliance, TCS, HDFC Bank, ICICI, SBI, Adani, Axis, etc., etc. These are all the 50 companies are there which are listed on this NSE. So NSE 50 companies का data उस पे लिखा हुआ है. अभी मुझे आप बताइए कलर क्यों अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं? Ma'am, it show the percentage of growing or gaining or losing. Okay, so if it is a very pale or a very light color, a very light green or something, here this is towards light, okay, light green. So उसका मतलब क्या हुआ? बहुत light dull color है. Ma'am, it's neutral. Right, absolutely. If I move on with certain little darker color, what does that mean? थोड़ा ज्यादा मोमेंटम है, थोड़ा ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है. Yes, ma'am. उससे भी थोड़ा ज्यादा ग्रीन है. अदानी Ma'am, it एंटरप्राइजेस तो बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस 3. yes, ma'am. इफ यू कैन चेक, रिलायंस के 0.3% से प्लस 0.3% से उनकी बस मूवमेंट चेंज हो रही है. करेक्ट? वेरी निग्लिजिबल.
SBI की देख लो आप 0.67 हो रही है, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ। लुक एट अदानी, कहाँ गया अदानी, 3.64, उतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, 3.64% से वो चेंज होता जा रहा है, तो ग्रीन कलर है। अभी उससे भी ज्यादा डार्क ग्रीन कलर आ गया आपका ONGC, कितना हो रहा है चेंज, 7.01% से होके 7.1. चेंज हो रहा है। So a darker color signifies darker volume and not darker volume, sorry, larger volume. On the other hand, अब ये लाइट शेड में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स, लाइट कलर है मतलब निगेटिव मूवमेंट हो रहा है, निगेटिव ग्रोथ है, माइनस में जा रहा है, देख लो Yes, -0.20, ma'am. थोड़ा सा स्लाइटली मोमेंटम है उसमें, लेकिन स्लाइटली मोमेंटम निगेटिव की तरफ झुक रहा है, ठीक है। देन एशियन पेंट से थोड़ा ज्यादा ना डार्क कलर रेड आ रहा है, एयरटेल में -0.82 आ रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा परसेंटेज उसका बढ़ गया टुवर्ड्स निगेटिव, तो भारतीय एयरटेल आ गया, कलर कोड चेंज हुआ। नाउ दिस बैंक इंडसइंड है ना, या इंडसइंड बैंक देख लो -2.59, ज्यादा मोमेंटम रहा इसलिए डार्क रेड कलर में आ गया। इवन टाइटन इज इनटू नेगेटिव और नॉर्मल नेगेटिव। तो जितने सारी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज आपको दिखाई देगी। इफ यू कैन चेक वॉल्यूम वाइज, अभी ये ब्लॉक बताइए कोई छोटे बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? रिलायंस Ma'am, को it show बड़ा, market size of एब्सोल्युटली राइट, मार्केट साइज के हिसाब से है। तो रिलायंस हैज गॉट द बिगेस्ट चंक, सो रिलायंस, TCS एंड HDFC। फिर भी रिलायंस के पास सबसे ज्यादा नो वॉल्यूम है, वॉल्यूमस है। सबसे छोटा आप दिखाई दे रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स। देन यहीं पर आपको बाद में दिखाई देगा बैंक निफ्टी स्टॉक। तो अभी बस बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देख लो सबसे बड़ा बिगर प्लेयर कौन है, HDFC में मूवमेंट कितना है 1.11। इंडसइंड बैंक अभी हमने देखा था माइनस में जा रहा है, AU बैंक भी माइनस में है, कोटक महिंद्रा बैंक अ वेरी लाइट डिफरेंस, एक्सिस भी लाइट डिफरेंस है, एक्सिस बैंक भी 0.1 से है, बंधन बैंक भी उतना ही है। So this is something where we see the maximum change, बैंक निफ्टी किस तरह से चेंज हो रहा है। अभी हमको देखना है कि अरे सारी, ये तो ठीक है, मुझे बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, मुझे निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है, सारे सेक्टर देखने हैं मुझे एक साथ कि क्या हाल क्या हो रहा है सारे सेक्टर का। सो निफ्टी सेक्टर हिट मैप, ये सारे सेक्टर आ गए, सेक्टरल ना, आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडाइसेस। तो ये सारा पहला वाला चंक है, ये सारे आ गए आपके निफ्टी वाले बैंकिंग सेक्टर। तो इसमें बैंकिंग एंड NBFC दोनों इंक्लूड है। NBFC कौन कौन से दिखाई दे रही है इसमें से, आपको बताइए जरा, कौन कौन से NBFC दिखाई दे रही है? मैम बजाज फाइनेंस, करेक्ट, बजाज फिनसर्व, परफेक्ट, अरे चोला, हाँ, ये बार बार बीच में लोडिंग आ रहा है क्योंकि वो रिसेंट डेटा लोड हो रहा है। दिस इज चोला मंडलम, चोला, ICICI Prudential, IG, ABC ABC Capital, SBI लाइफ। सो बहुत सारी जितने सेक्टर्स है आपको दिखाई देंगे, जितने सारे। दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, मतलब ये आ गया आपका FMCG सेक्टर। देन ये सन फार्मा वगैरह वगैरह, ये आ गया आपका फार्मास्यूटिकल एंड अदर का सेक्टर इसमें। TCS, Infosys, Wipro, HCL, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, मैम IT कंपनी, IT सेक्टर। ये वाला रिलायंस, ONGC, IOC, गेल, BPCL, पेट्रोलियम सेक्टर। देन एयरटेल, भारतीय एयरटेल, टेलीकम्युनिकेशन, Telecommunication, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ओके, लेट इट लोड। अदानी पोर्ट्स, कॉनकॉर्ड, GMR Tier, है वो, GMR इंफ्रा एविएशन उसमें। ओके, सो दिस इज मोर टुवर्ड्स, ये आ गया आपका सेक्टरल, इस तरह से होता है।
नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर, ट्रेडिंग व्यू करके है। ओके, ट्रेडिंग व्यू के ना मैं होम पेज पे जाती हूँ, बिकॉज सिंस आई हैव लॉग इन, मेरे पास ना उसका बुक मार्क है। ट्रेडिंग व्यू करके आपको लॉगिन करना होता है, बिकॉज सिंस आई हैव लॉग इन, मेरा लॉगिन कंटिन्यू रहता है, तो फिर ये लॉगिन करने के बाद ये वाला स्क्रीन आ जाता है। उससे ये ट्रेडिंग व्यू से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है फॉर द एजुकेशनल पर्पस, फॉर द नॉट नोइंग द टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, एंड इवन टू गो फॉर द ना इन्वेस्टिंग। ये जो वेबसाइट है काफी यूजफुल है। उसमें से आप प्रोडक्ट्स पे जाओगे और सुपर चार्ट्स, ये ट्रेडिंग व्यू की मैं आपको दे देती हूँ लिंक। Have you ever checked trading view before, anyone? Yes, ma'am. Good. तो इसको आप किस तरह से यूज करते हो? For watching a stock analysis. Absolutely right. Okay. तो अगर आपके कोई ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी है, मतलब आप जो कुछ भी जो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज बाय द वे? आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो? कितने लोग हैं? Okay, raise your hand in case you are trading frequently या occasionally, ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो, कैसे भी हैंड रेस करोगे तो मुझे पता चलेगा। तुषार इज द वन पर्सन, एक ही है, 70 लोगों में से एक ही है। एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूँ मैं। एसआईपी, ओके, यस। सो दैट्स अ म्यूचुअल। 2-3 पार्टिसिपेंट्स है, ओके। सो ये एनएससी, ये निफ्टी है, निफ्टी का डेटा है। लुक हाउ निफ्टी इज वर्किंग, यू नो। ये जो आपको ब्लू लाइंस और रेड, ब्लू सॉरी नॉट ब्लू, रेड और ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलते हैं? लाइंस जो दिखाई दे रही है उसको आप बोलते हैं कैंडल। दिस इज कैंडल स्टिक। ये कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है का मतलब है हर दिन के लिए या हर एक घंटे के लिए बन जाती है, हर एक मंथ के लिए बन जाती है। आप जिस तरह से डेटा दोगे उस तरह से होती है। अगर ये 1 डे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब चेंज होने वाली है, हर एक दिन की कैंडल है। तो हर एक दिन की कैंडल किस तरह से होगी ये आपको दिखाई दे रहा है। सो 1 डे, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप बोल देते हो ना यहाँ पे 5 डेज का डेटा या फिर 5 इयर्स का डेटा, अकॉर्डिंगली आपको ये कैंडल्स दिखाई देगी। 1 वीक का है, वीकली डेटा है, सो वीकली, मंथली, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मंथली, 6 मंथली आपको किस तरह से डेटा देखना है। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज ओवरऑल बैंक निफ्टी कैसे जा रहा है हम चेक करते हैं, ठीक है। निफ्टी, यहाँ पे मैं निफ्टी का चेक कर लेती हूँ। बैंक निफ्टी, so how is bank nifty index moving overall? So over a period of time, अगर आप देखोगे, let me just cancel out this volume. ठीक है, अगर मुझे आपको दिखाना है बस वॉल्यूम कि किस तरह से, सॉरी नॉट वॉल्यूम, किस तरह से ये जो ओवरऑल शेयर्स जो है वो चेंज होते गए कितने सालों से। सो 2020 देख लेते हैं। कोविड आया था तब। कोविड कब था आया था? स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च ना, 19 मार्च। 19 मार्च 2019 नहीं 20 था। 20 था मैम। हाँ, सो 20 मार्च को देख लो। यहाँ से चलने वाला अच्छा खासा स्टॉक एक्सचेंज का डेटा बैंक निफ्टी का, अचानक से कितना बड़ा फॉल आ गया। ये फॉल कौन सा है? 16 मार्च डीप डाइव, सबसे बड़ा फॉल आया यहाँ से कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक का 23 मार्च, टू बी एग्जैक्टली ऑन दैट। मित्रों, आगे से 3 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा, यही दिन बताया था। सो स्टॉक मार्केट क्रैश। सो यहां से लेके बैंक्स चलते रहे,
बैंक्स क्यों चलते रहे? क्योंकि बैंक्स को चलना ही था। बैंक्स बंद हो जाते तो इकोनॉमी पूरी बंद पड़ जाती। मैन्युफैक्चरिंग सेल्स डिवीजन वाज डाउन कंप्लीटली फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 months अहेड। पूरे एक साल या आगे आफ्टर इफेक्ट्स 1-2 साल के लिए रहे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर हैड टू वर्क ऑन, हैड टू बी ऑन द ट्रैक। फिर भी ट्रैक पे आने के लिए उनको काफी वक्त लगा। देख लो आप, इस पोजीशन से लेके ये पहले अच्छा खासा टॉप पे था, यहां से लेके वो टॉप मैच हो रहा है यहाँ वापस। मतलब 18 जनवरी 2021, मतलब लगभग 8 से 9 महीने लग गए उनको वापस आने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को भी। आगे से वो मोमेंटम फिर अच्छा खासा रहा। और अभी हाल देखिए, अभी हाल सारा अप ट्रेंड है। जब यहां था द स्टॉक मार्केट वाज एट 16,321, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डार्क राइट साइड पे ब्लैक कलर में 16,321 पे था इंडेक्स। यहां पर सी माय कर्सर, नाउ चेक द प्रोग्रेस। आगे चलते हुए बढ़ गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज के दिन टच हुआ है 50,000 को। So the wise person who have invested in certain banks way back in 2020, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 300 times बढ़ गई? Yes or no? Yes, ma'am. So investing in stock market is a wise idea or not? Of course, after having due knowledge, you are supposed to invest. It's not going to be a hasty decision. But again, investing in the stock market and at the earlier stage is always a better idea than delaying the things. बहुत पैसे आएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, this is something don't take in your mind. You can start with 100 rupees as well. 100 rupees से start करो, eventually आदत हो जाती है, start investing in the stock market. ये बार बार अमाउंट इतने नीचे लेवल तक नहीं जाएगी। अब ये 50,000 से नीचे गिर भी जाता है स्टॉक, ये एक्सचेंज मतलब ये इंडाइस, तो भी इतनी भारी गिरावट नहीं होगी कि 16,000 पे वापस आएगा कि आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा एट द लेसर प्राइस। इतना नीचे तो गिरेगा नहीं। अगर आपको देखना है पिछले जस्ट 5 दिन का डेटा, वन डे 5 दिन का डेटा, पांच मिनट की कैंडल में ओके, दिस वाज द डे दिखता है। बैंक निफ्टी कैसे रहा देख लेते हैं। 5 अगस्त अच्छा खासा चलने वाला, ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा था, निकाल देती उसको मैं, अच्छा खासा चल रहा था। Yes, ma'am. एक मिनट, फ्लैट दिखाई दे रहा है, मतलब इंक्रीज 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 इंक्रीज। ये आ गया आपका 5th अगस्त मंडे क्रैश हुआ। कितना था पहले? 51,000 था। कितना क्रैश होके गया? 49,000। सो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट से गिर गया, हेवी मैसिव। अभी आप बताइए मुझे कि इसमें परसों जो क्रैश हुआ था कितने पैसे बर्बाद हुए इन्वेस्टर्स के? अराउंड आइडिया कुछ? 60 लाख कितना? सॉरी 10 लाख 10 करोड़ का 15 लाख, 15 लाख करोड़। 1,000 करोड़ प्लस। हाँ ना, इट्स नॉट हजार, इट्स लैक्स। इट्स 15 लाख करोड़। इतना बड़ा लॉस हुआ। अब ये लॉस क्यों हुआ?
ओके अचानक से ऐसे क्या हुआ, इतने हालात बिगड़ गए कि ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ द एक्सचेंज मंडे को ही स्टार्ट होके ही गिरा। क्यों? वर्ल्ड बैंक जस्ट इन द अर्लियर वीक कुछ ग्लोबल मार्केट में चेंजेस हुए। एनीवन नोज द रीजन, ये क्या चेंजेस हुए? किसी को पता है? क्रैश हुआ मैम। बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट क्रैश। वही तो पूछ रही हूँ ना मैं, क्रैश हुआ मुझे भी पता है, रीजन क्या था? मैन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन यूएस। ठीक है, तो यूएसए वाज इनटू रिसेशन। अब ये रिसेशन होना क्या एक दिन की बात होती है? नो मैम। तो recession is a phase, no, so it will be there lasting long for at least some weeks. तो अचानक एक ही दिन स्टॉक मार्केट इतना क्रैश क्यों हुआ? यूक्रेन वॉर, अरे यूक्रेन वॉर तो पिछले 1 साल और कुछ महीने 1.5 साल से चल रहा है, अचानक थोड़ी मंडे को हुआ था। ईरान, वो तो ईरान का वॉर, यूक्रेन वॉर, लेबनान ने कहा कि इंडियंस निकलो अपने हमारे घर से, हमारे देश से, बांग्लादेश इज नाउ बर्निंग। तो बहुत सारी चीजें होगी एक साथ आके, कुछ ना कुछ तो उसका इम्पैक्ट हुआ। तो मेन इम्पैक्ट मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। फॉर years together, okay, by the way I'm going to talk for another 10 minutes of time, then we can start with Q&A session. So at exactly 12:30 I'll be ending my discussion. So हुआ ऐसे था कि जापान पिछले कई सालों से 0 इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देता था। उनकी बैंक जो है जापान में, उन्होंने कभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, नॉट इवन ऑन डिपॉजिट्स, नॉट इवन ऑन लोन्स। मुफ्त में पैसे रखो, मुफ्त में पैसे लेकर जाओ, बस रिपेमेंट कर दो, इंटरेस्ट हम तो मांग ही नहीं रहे। सो इट बिकेम वेरी इजी फॉर जापानीज टू नो टू गेट द मनी फ्रॉम बैंक। अभी हुआ हाल ऐसा कि सबको पता था कि जापान में लोन तो लगभग मुफ्त में बांट रहे। तो जितने सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स, जितने भी एंटिटीज थे, सब जापान से लोन के लेते थे। और अभी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड कौन सी है बताओ आप? स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग। कुवैत, यूएसए। जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया नहीं बोल रही हूँ मैं, इन जनरल यूएसडी, क्योंकि लार्जली ट्रेडेड करेंसी है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है। सो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, टेक लोन फ्रॉम जापान एंड इन्वेस्ट इन यूएसडी। तो यहां से पैसे लो, यहां से कन्वर्ट करके यूएसडी में इन्वेस्ट कर लो, एंड जब भी सेल करना होगा, सच काइंड ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, जब भी ट्रांजैक्शंस करने होंगे, सेल इनटू द यूएसए। उस वजह से होता था क्या, यहाँ से पैसे निकालना, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना, उस वजह से यूएसए का स्टॉक मार्केट काफी बढ़ गया। जापान से लोन लिया था तो जापानीज की बैंक जो है वो अच्छी खासी चल रही थी। फील गुड फैक्टर दोनों तरीके से। अभी कई सालों के बाद, आफ्टर 30 years, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेडली, विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, जापानीज बैंक ने अचानक से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया। तो अचानक इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की वजह से जिन लोगों ने करोड़ों और लैक्स ऑफ करोड़ का लोन उठाया था जापान बैंक से, उनको अचानक से बड़ा झटका लग गया, क्योंकि अब इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये तो खर्चा हो गया। सो ये खर्चा होने की वजह से व्हाट हैपेंड इज, दीज हेज फंड एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ट्राई टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन। अरे चलो निकलो, ज्यादा पैसा हो रहा है, ज्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे, इससे और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, इससे और नुकसान हो जाए, इससे पहले हम स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं पोजीशन। तो ये स्क्वायर ऑफ पोजीशन करने की वजह से जापान के जो स्टॉक मार्केट था वो कोलैप्स हुआ, क्योंकि उनकी बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो गई, उनकी करेंसी जो थी वो अप्रिशिएट हो गई। 165 येन, जापानी करेंसी है येन, जो 165 करेंसी जब देते हैं येन, तो 1 यूएसडी मिलता है। हमारी करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट है बाय द वे? 83 84 के अराउंड है। सो जब आप 84 रुपीज स्पेंड करते हो तो आपको 1 यूएसडी मिलता है।
जापानीज में 165 येन आप देते हो तो 1 USD मिल जाता है। सो ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो गया कि अभी ये सारे लोग जो है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लग गए, तो 165 येन जो था वो एप्रिशिएट होके हो गया 145। अभी आपको दिखाई देगा 165 येन से 145 येन तक चला गया। अगर 165 से 145 इतना ये चेंज हो जाता है, इसका मतलब करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है? क्या लगता है आपको? डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट क्यों? डेप्रिशिएट क्यों हुई तुषार? 165 से 145 कम हो गया इसलिए। यस मैम। टेक इट इन द अदर सेंस कि आप मार्केट में चले गए 500 रुपए लेके, ठीक है, और अगर एक आपको कुछ चीज खरीदनी थी और शॉपकीपर ने बताया कि आपके पास 500 रुपए ही है, आप 500 लेकर गए, आपको पता था कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो 500 को ही मिलने वाली है। अचानक से वो शॉपकीपर बोल देता है आपको कि नहीं नहीं ये 500 में थोड़ी है, तो 700 रुपए में है, क्या आप खरीद पाओगे? लॉजिकली नो। नो। लेकिन टेक इट इन अदर सेंस, अगर आप 500 रुपए लेकर जाते हो और आपको वो चीज जो चाहिए थी वो 500 की जगह भी 300 रुपए में अवेलेबल है, विल यू हैप्पीली टेक इट? यस मैम। Absolutely, you'll take it for 300 rupees and you'll get 200 rupees in savings. Correct. मतलब उसी पैसों से अभी आप दो बेनिफिट्स अवेल कर पा रहे हो। एक तो आपको कमोडिटी भी मिल रही है और आपको सेविंग्स भी हो रहा है। मतलब अगर कीमत कम हो जाती है तो आप ज्यादा खरीद पाते हो डेफिनेटली। तो अगर जापानीज करेंसी 65 से 145 हो गई, इसका मतलब जापानीज करेंसी एप्रिशिएट हुई, क्योंकि पहले जापानीज करेंसी 165 रुपीज देने पड़ते थे टू परचेस 1 USD। अभी उनको कितने देने हैं? 145 ही देने हैं। तो ये 20 रुपए की जो चेंज थी वो कुछ 1-2 दिन में चेंज हुआ था। इतना बड़ा चेंज किसी करेंसी में 20 साल के बाद हो जाता है, लगभग 10-20 साल में होता है। और इफ यू चेक 83 रुपीज या 80 रुपीज से लेके 86 रुपीज तक की रेंज इंडिया ने कितने सालों से संभाल के रखी है? इफ यू कैन चेक लास्ट 10 इयर्स से फ्लक्चुएशन जो हो रहा है वो 80 रुपीज से 86 रुपीज तक ही हो रहा है। 6 रुपीज से ही चेंज हो रही है हमारी करेंसी, इफ यू कैन चेक। लेकिन ये 20 रुपए का चेंज बस 2-3 दिन में होना, दिस वाज समथिंग वेरी अलार्मिंग। और इस वजह से सारे उलथा पुलट मतलब सब उलट पुलट हो गया एंड स्टॉक मार्केट ऑल द वे एंटायर इन द वर्ल्ड कोलैप्स्ड, नॉट जस्ट फॉर US एंड जापान, सारे चेंज हो गए। मतलब नास्डैक, डाउ जोन्स, लग्जमबर्ग, निक्केई जापान का, देन हांगकांग का, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस सारे डाउन हो गए, डाउन बाय सो मेनी परसेंटेज। तो ये भी था। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ ग्लोबल फैक्टर। ये सब कुछ बोला जाता है कि यूएस में वीक जॉब्स थे, उनकी स्टार्ट ही हो गई रिसेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हो गई है, ले ऑफ्स काफी ज्यादा बढ़ गए, आईटी सेक्टर इज इन डाउनसाइज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो वॉर और ये सब चल ही रहे, ईरान के, इसराइल के, रशिया, यूक्रेन, वो तो हो ही रहा है। डोमेस्टिक फैक्टर्स भी थे, ग्लोबल सेल ऑफ, सारी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, हेज फंड, म्यूचुअल फंड सारे सेल करने के लिए पीछे लग गए थे, तो स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ। प्रॉफिट बुकिंग, सबने प्रॉफिट बुकिंग करके अपना अपना पैसा निकाल लिया मार्केट से, क्योंकि जापान की करेंसी बहुत फ्लक्चुएट होने लगी, उसकी वजह से यूएस की करेंसी भी चेंज होने लगी। नाउ इम्पैक्ट ऑन निफ्टी क्रैश ऑन बैंकिंग सेक्टर। तो हुआ क्या उस वजह से? सबकी असेट्स बहुत सारी तरीके से डिक्लाइन हुई। increased provisioning, banks might need to set aside more funds for the provision. तो RBI को तुरंत एक्शन कुछ लेना था, so RBI had a meeting, now they will be revising few things in future. अभी इस वीक में RBI से कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन आएगी। RBI is in a constant discussion now. Reduce lending activity, क्योंकि लेंडिंग एक्टिविटी रिड्यूस करनी पड़ी, अभी पैसे बचा के रखने थे बैंक्स को, या बैंक्स के पास ही खुद पैसे कम थे, तो बैंक्स लेंड ज्यादा नहीं कर पाए, तो बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ इस वजह से। सो ओवरऑल द कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर डे ऑफ क्रैश।
नेक्स्ट क्या हुआ उसके बाद? इसी हफ्ते के पिछले का हफ्ता जो चल रहा था उसमें निफ्टी टच न्यू बेंचमार्क ऑफ 25,000 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. Everyone was so happy, but it could not sustain on that particular level for so long and ये crash हो गया. Impact on bank nifty, तो being an index of the lending banks, तो वो bank nifty को तो impact होना ही था. So important it is to note that banking sector's resilience can vary. हर एक बैंक उसी तरीके से चलेगी ऐसे नहीं होता है, because we have got this private sector banks and public sector banks, दो अलग अलग होती है. So इस वजह से फैसिलिटीज एंड सर्टेन बेनिफिट्स जो पब्लिक सेक्टर को मिलते हैं शायद प्राइवेट सेक्टर को ना मिलेंगे, या कस्टमर बेस एंड सर्टेन चेंजेस जो प्राइवेट सेक्टर जितने आसानी से कर सकता है, मोल्ड जितने चेंजेस कर सकता है पब्लिक सेक्टर शायद ना कर पाए. सो इस वजह से हर एक बैंक का रेजिलियंस लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है. सो अलग अलग तरीके से बैंक डाउन हो जाती है, उनके खुद के कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं. जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के बाद कोई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उनका इंडेक्स बढ़ जाता है, उनकी प्राइस बढ़ जाती है. जिनका बुरा रिजल्ट होता है, बुरा हाल होता है, तो वो पूरी तरीके से आते हैं. जैसे कि आज आपने देखा था कि इंडसइंड बैंक ही सिर्फ नेगेटिव था, बाकी सारे बैंकिंग से सेक्टर सारे अप थे, सारे बाकी जो थे बैंक्स स्क्रिप्ट्स वो सारे बाकी अच्छे खासे ग्रीन में थे. So this was what the discussion we had today about Nifty, about Bank Nifty. We saw the trading view platform, we saw the Obstra जिसमें आपने heat map देखा, सिर्फ sectoral की किस तरह से movement होती है, green, lighter green से dark green, lighter red से dark red, सारे की indications क्या क्या होते हैं, we saw that. And at the end of the session I discussed the reasons for the crash और उस वजह से impact क्या क्या हो रहा है. And way to go, अभी just market down है, लेकिन it will take certain time to streamline to get on board now, get on certain right track. uptrend होने के लिए थोड़ा time लगेगा, maybe a week's time would require, लेकिन वो जी-जम करेगा. So any questions, I'll be happy to answer. I hope you like this session, and I hope you got certain good insights about stock market, about Bank Nifty, hopefully. Gurpreet sir, are you there in a meeting? Yes, ma'am, I'm there. Okay, is there any facility we can get a poll here so that I would like to know about my performance? No, we will share the feedback form, and accordingly, when we get the responses, then we will share with you. I would like to know the feedback. Exactly, right. Because since this is my first interaction with this batch, I would like to know my performance and how the students liked this session or not. No, ma'am, we'll definitely share with you, right? So basically, Yeah. anyone have any doubt, so you can ask ma'am directly. किसको कोई doubt है? We can keep the meeting open for another 5 minutes of time for the Q&A session. Sure, ma'am, sure. Ma'am, are you do day-to-day trading? Sorry, come again, please. Intraday or swing trade? I do intraday most of the times, not daily basis, but yes, whenever I get certain not time that I can concentrate on trades, I have enough time to check the candlesticks and all, sitting at the in front of the screen, and to have a diligent and careful investment, I do intraday. Otherwise, I do have a very good portfolio for the delivery trading and mutual funds. I do invest aggressively into in the delivery tradings and mutual fund. तो मैम क्या आप अपना पर्सनल कोई इंडिकेटर या जो आप यूज करते हो टेक्निकल एनालिसिस Fibonacci is something Fibonacci and volume analysis and breakout, which I mostly utilize. Okay, ma'am. Thank you. Say again, ma'am. Fibonacci was a mathematician who decided certain levels for the technical analysis, and it's wonderful. Usually the stock go as per the Fibonacci technical analysis. And my mother? Volume breakout. Okay. वॉल्यूम ब्रेकआउट का मतलब होता है वॉल्यूम कब चेंज होता है ना, वॉल्यूम कितना ज्यादा हो रहा है.
ट्रेडिंग व्यू में भी दिखाया था ना आपको। एक मिनट हाँ यस मैम। एक मिनट बताती हूँ मैं। सिंस यू हैव रेज्ड दिस क्वेरी आई वुड लाइक टू अरे ये नहीं शेयर करना है मुझे, वेट अ मिनट। Yeah. आई विल बी शोइंग यू दी अभी आपको कौन सी स्क्रीन दिखाई दे रही है? मेरा पीपीटी दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम। ओके नहीं, ये पीपीटी नहीं देखना है। आई कैन, चलो एचडीएफसी बैंक देखते हैं। So this is what the movement in HDFC Bank. Yeah. So HDFC Bank की मूवमेंट ये देखो, यहाँ पर था HDFC 1669 पे था। 5 अगस्त को क्रैश होके कितना लोएस्ट प्राइस चला गया? 1603। सो 1668 से लेके मतलब ऊपर तक, सॉरी 1674 से लेके डाउन हुआ था 1597, लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट, 200 पॉइंट्स। सो यहाँ पर ये अगर आप चेक करो ओके। सो अगर आप इस पे देखोगे इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे मुझे चाहिए वॉल्यूम, ने वो रखा ही है वॉल्यूम वाला एज ए फेवरेट। यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, some green and red color. Yes ma'am. So what does that mean? ये बड़े बड़े, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे कलर, छोटे छोटे हैं। जितना आपको छोटा दिखाई देगा ये वाला बार, जितना छोटा छोटा बार, यहाँ पे बस रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंडिया के जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, ब्रोकर्स ट्रेडर्स वगैरह यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब भी आप ग्रीन कलर की बड़ा बार देखोगे, ये ऐसे लोग होते हैं जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन बैंक्स या फिर बड़े बड़े हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये बड़ी अमाउंट पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये वॉल्यूम जब ज्यादा हो जाता है आप देखोगे तभी ग्रीन 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 कैंडल आती है। ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही है। सो अब देखोगे आप ग्रीन कैंडल बड़ी आ गई, ग्रीन बड़ा बार आ गया, प्राइस बढ़ गए। और एक बार दिखाती हूँ, वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। मैम इसमें एक चीज समझ नहीं आया मैम। क्या मैम इसमें जैसे कि हैमर यहाँ पे जहाँ से ऊपर गए हैं, हैमर नीचे ऊपर बना है, बट यहाँ हैमर ऊपर बनने के बाद भी यहाँ रेड हो रहे हैं, इसका कुछ प्रोसेस होता है क्या? कौन सा कम अगेन वापस बताइए, कुछ स्पेसिफिक कैंडल के बारे में बता रहे हो आप? मैम ये जहाँ से सीधा अप गया है ग्रीन कैंडल, यहाँ से? नो मैम, ग्रीन कैंडल से यहाँ से यहाँ सेंटर मैम, सेंटर यहाँ, या इसके पहले बना है हैमर ऊपर बना हुआ है, हाँ बट इसकी यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वहाँ हैमर नीचे बनने के बाद फिर एक बार ऊपर बना है, बट उसके भी नीचे जा रहे हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक रहता है क्या? ये तो बुल्स एंड बेयर्स फाइट नो फॉर द प्राइसेस। जब या भी मैम, प्राइस ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे आके जो लोग इस मोमेंट पे जो 1603 पे आके जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, जी उनकी कैंडल बड़ी बड़ी होने के बाद अभी उनको लगता है कि चलो अभी बस हुआ, प्रॉफिट इतना ही बढ़ेगा, वो स्क्वायर ऑफ खुद ही कर लेते हैं। सो बुल्स ओके, एंटर्ड इन द सेलिंग पोजीशन नाउ। जो जिन लोगों ने ये यहाँ पे बुल्स और बेयर का फाइट है मैम। हाँ, ओके, सो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था 1603 अमाउंट पे, उन्होंने जाके 1673 जब अमाउंट टच हुआ उन्होंने सेल कर दिया। तो जो लोग सेल कर लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स सेल कर दिया, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड कैंडल आ गया क्योंकि ये सारे लोगों ने सेल कर दिया। वापस बुल्स ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया, यहाँ पे सेल्स आता है। जब भी आपको दिखेगी ग्रीन कैंडल है ना, तभी वहां पे ऊपर बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक दिखेगी। ग्रीन बार नीचे बड़ा, ऊपर बड़ी ग्रीन कैंडल। अभी ये रेड कलर का दिखाती हूँ, देख लो यहाँ पर वेडनेसडे 3 जुलाई बड़ी रेड कैंडल है। ये बड़ी रेड कैंडल का मतलब क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, हेज फंड जो बड़ी बड़ी अमाउंट पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, उन्होंने सारे विड्रॉ कर लिए, एग्जिट कर लिए। एग्जिट कर लिया। तो एग्जिट कर लिया तो देख लो आप, अभी एक मिनट थोड़ा सा जूम कम कर लेती हूँ, देख लो आ गया डाउनफॉल।
यहाँ से रेड कैंडल दिखाई दे रही, वॉल्यूम यहाँ पे रेड कलर आया। अब ये कंटिन्यूअस काफी सारा रेड कलर था, तो ये कंटिन्यूअस डाउनफॉल दिखाई देगा आपको, है ना। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे सारे रिटेल लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा प्लेयर नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स ही काम कर रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं आपकी 5th वाली डेट पे। फिफ्थ यहाँ चलो, 5th पे आ गया भारी बड़ा बड़ा रेड कलर का कैंडल, तो मार्केट आ गया डाउन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सारे FIIs, म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स सब बेचने लगे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगे, तो बेचने लगे तो हो गया निगेटिव। गॉट इट? यस मैम मैम। फॉरेन जो होते बैंकिंग हैं से इंडियन बैंकिंग में कुछ डिपेंड करता है या नहीं करता है? सॉरी, फॉरेन बैंकर जो है उनसे इंडियन बैंकर से कुछ डिपेंड करता है कि नहीं कुछ मैम? काफी काफी फॉरेन बैंक्स, यू मीन टू से एनी फॉरेन बैंक इन्वेस्टिंग इन इंडियन बैंक, इज दैट सो? या मैम। या वही तो बड़े प्लेयर होते हैं ना, they are not going to invest in only certain thousands and lakhs. They usually invest in certain lakhs crores amount. वो इन्वेस्ट करते भी है तो कुछ 1000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर की तो औकात ही नहीं है इतनी बड़ी अमाउंट पे काम करना, ये तो बस काम जो होता है बड़ी बड़ी बार वाला, वो तो रिटेल इन्वेस्टर का ही काम होता है। रिटेल इन्वेस्टर नहीं, सॉरी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIIs, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, यही लोगों का काम होता है जो बड़ी बड़ी अमाउंट पे कर लेते हैं, इस वजह से ये बड़े बड़े बार्स वॉल्यूम के आ जाते हैं। गॉट इट? या ओके, एनी अदर डाउट्स? No, ma'am. Yeah, so Gurpreet sir, in case you permit me, I can then stop my this session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for sharing your invaluable knowledge and inciting us, our candidate. We appreciate your time and efforts. Thank you so much on behalf of others, and thank you so much once again, ma'am. Thank you. Thank you so I will much share the and PDF have a form nice with you. day. Yeah, thanks, ma'am. You also, ma'am. Thank you. Yeah, and Thank I will be now giving an email to you, sir. Over the email, Sure. I'll be sending you this PPT. So if you Okay, want, you yes. can just circulate to the students then. Sure, sir. Sure, ma'am. Sure. I will Sure. definitely. So definitely. Yeah. guys, it was wonderful having interaction with you, and your participation really made the session more interesting. I thought so. So thank you so much, and God bless you. Have a nice day ahead. Thank you. Happy Thank you investing. so much, ma'am. Thank you very much. Yeah. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Yeah. Thank you, Thanks a ma'am. lot.